कौन प्यारे बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. Yes. Which chapter we were discussing in the last class? कौन सा चैप्टर पढ़ना है हाँ. सर? कौन सा चैप्टर पढ़ना है? Good job. सर कौन सा चैप्टर पढ़ना है? What chapter is energy which gives sensation of sight. Sight. Yes. Sir, light chapter 2 से पढ़ते हैं The हम. light is a process of the light is a form of energy which gives sensation of sight. Thank you. Now let us see. Sir, light is a form of energy. Yes, thank you. Which Light gives is a sensation form of sight. energy which produces A sensation of form of sight energy that in our equals to eyes. see object. Please silent रहो. You will not talk. This is your recorded class. Sir is also watching your class. So, children, you listen about the chapter. Light and shadow. Light is a form of energy. Listen carefully today. Light is a form of energy that produces sensation of sight in our eyes. Sun is the major natural source of light that emits light of its own. Stars also known to emit light of their own. Sources of light like the sun or the stars which emit light of their own are called natural sources. Humans have also Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, okay. Yes, sir. देखो प्यारे बच्चों, Yes, sir. ठीक से ध्यान से देखना. You take on horizontal paper. टेबल बना दिए हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके. गौर कर रहे हैं? गौर कर रहे हो? कैंडल जला दी. देख रहे हो सामने एक कैंडल है यहाँ पे. देख रहे हो? कैंडल है, इसको ठीक सामने से लाइट आ रहा है, ऐसे मैं होल बना दूं. देख रहे हो? Yes, sir. ये एरो दिखा रहा है, लाइट जा रहा है. ध्यान से रखो तुम लोग. Yes, sir. Yes, sir. When we place the burning candle on the table, and we put it in two vertical positions of the cardboard, making hole on the surface. Two equal size cardboard piece is taken, and they are kept vertical position on the tabletop. And with the help of nail and hammer, clean hole is made on the pieces, and these pieces are put vertically with a suitable stand, and they are adjusted their position
so that holes on the two pieces are along the same straight line. देखो यहाँ पर होल है, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द बर्निंग कैंडल, ये कैंडल बर्न कर रहा है, लाइट इज ट्रेवलिंग टू द स्ट्रेट लाइन, entering into the hole, and they once again passing to the other hole of the second cardboard. So when lighted candle is placed on one side in such a way that the flame can be seen through the second hole to the other side. The moment we disturb any of the two pieces slightly, we do not see the flame on the candle from the other side. गौर करोगे, जैसे यहाँ पर गौर करो, दिखाई पड़ रहा है कार्डबोर्ड का, ये यहाँ पर कार्डबोर्ड नंबर 1, 2, तो कार्डबोर्ड नंबर 1 और फिर जैसे लाइट जा रहा है वो सीधा एकदम निकल जा रहा है. So if holes are made on the cardboard at the same height, at the height of the candle burning flame, the light will enter into the hole and we can see the spot of light. If we are getting the spot of light of the candle on the other side of the cardboard, yes. प्यारे बच्चों, we see that how shadow is formed when opaque of region is obtained and conditions. क्या क्या? Number 1, source of light must be there. Number 2, opaque object must be there. Number 3, screen or wall to obtain the shadow. स्क्रीन का होना जरूरी है, वॉल का होना जरूरी है. हाँ. Phenomenon of formation of shadow tells us that light propagates in a straight line. Shadows are formed because the light moves along a straight line path and is not able to bend its path around its large obstacles. Sir, Yes. sir, बोलिए. सर फीस का शैडो कैसे बनता है? किसका? फीस मछली का. फिश का शैडो कैसे बनेगा? मछली पानी में जाएगा तो पानी में रहती है. हाँ, तो जो सन का लाइट फॉल करेगा ना फिश पर, तो फिश का बॉडी से टकराने के बाद लाइट रिटर्न बैक होगा, इधर उधर मूव करेगा, तो डार्क रीजन नीचे चला जाएगा साइड से. हाँ, अगर सर उसका शैडो कहाँ बनेगा? शैडो वो डिपेंड करेगा का शैडो फॉर्मेशन वाटर पे होता है. हाँ, अगर मान लो बड़ा सा कंटेनर में फिश को रख देते हैं और साइड से लाइट भेजेंगे तो शैडो मिल जाएगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट पर, खाली मछली ही नहीं. आप टॉर्च जला लो और हाथ को ऐसे कर लो तो यहाँ शैडो मिलेगा ना. अगर हम हाथ लाते लाइट के पास तो शैडो वॉल पे पड़ेगा ना, ऐसे देखो फिंगर का. यस सर. तो एनी ऑब्जेक्ट व्हेन कम्स, मीनिंग समझो. हाँ, एक्टिविटी 2 का डायग्राम देखो. हाँ, टेबल पे कंघी रख दो, टॉर्च जला दो. कंघी से जब टॉर्च का लाइट टकराएगा तो शैडो ऑफ द कॉम्ब ठीक उसके सामने मिलेगा. ठीक है. Fix a comb vertically on one side of the table and cover this table with the tablecloth
and send the beam of light from the powerful torch through the comb, what do you observe? And why does every tooth cast a shadow? सर So फायर का opaque material always casts shadow. ठीक है, समझ रहे हो? With the help of friend, pass a thin string through the comb and hold it straight between hands. Hold the string along the direction of light rays and hence observe the direction along which light moves. We can see that light moves along a straight line path. When it gets blocked by an opaque object, shadow is formed. Because light cannot bend around the obstacle. तो ये बात का ध्यान रखना है। हाँ, ये चीज गौर करोगे, मैं कोशिश कर रहा हूं आपका यहाँ भेजने का, दिखाने का। Yes, you can see the torch is there, powerful torch is there, comb is placed on the table, shadow is formed just near to the comb. So it is the direction of light which allow to strike or incident on the opaque object. Dark region of the comb is seen, we call it shadow of the comb. तो ये तरीका होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी है, देखो, shadows can be misleading in times. They can mislead us about the shape of the object associated. Shadow can create with the finger of our hands. यहाँ पर हाथ के द्वारा बनाई गई है डार्क रूम में, देखो 2 फिंगर पे लाइट दे रहे हैं तो शैडो यहाँ मिल रहा है ना। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैडो? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैडो की बात जहां तक आती है, द साइज ऑफ द शैडो इन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट दैट इज एक्टिंग एज एन ऑब्स्टेकल। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे आपका शैडो का जो शर्त होता है, कंडीशंस होता है, वो डायरेक्शन ऑफ लाइट है। साइज ऑफ द शैडो of given object depend upon the relative position of the source of light and the object. कहाँ पर लाइट है, हाँ, सोर्स ऑफ लाइट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये शैडो कितना बड़ा बनेगा, हाँ, it depend on the direction, it depend on the position of the object from the source. Shadow of object is always black irrespective of its color. एक चीज और ध्यान देना चाहिए प्यारे बच्चों, शैडो इज ऑलवेज ब्लैक, वो कलरफुल नहीं होता। आप रेड शर्ट पहनो, व्हाइट पहनो, लेकिन शैडो उसका हमेशा ब्लैक मिलेगा, ये ध्यान में रखा जाता है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक्टिविटी 3 के बारे में देखें, हाँ, आपको मैं एक्टिविटी 3 दिखा रहा हूं। यस, गौर करोगे, हाँ, एक्टिविटी 3 पावरफुल टॉर्च है, प्लेस किया हुआ। व्हेन बीम ऑफ लाइट ऑफ द पावरफुल टॉर्च is sent on the cardboard piece, ये देखो गोल कार्डबोर्ड पीस है। When light incident on and strike the cardboard piece, dark region of space is obtained on the screen. अब देखो, this is called shadow. Dark region obtained, this is the shadow of the cardboard piece. ये पार्ट को स्क्रीन कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट का सोर्स है। हाँ, सेकंड में आ जाओ, गौर करना, यहां देखो टॉर्च का यहाँ पर लाइट है, मूव द कार्डबोर्ड पीस टुवर्ड द टॉर्च पीस। अब गौर करोगे, ये जो ऑब्जेक्ट है पहले दूर में था, अब थोड़ा नजदीक आ गया, गौर कर रहे हो? आवाज आ रही है ना प्यारे बच्चे? आना बोला करो।
हाँ Yes, कार्डबोर्ड sir. पीस, हाँ Yes, ये sir. रहा, गुड, वेरी नाइस। तो कार्डबोर्ड पीस इज नाउ ब्राउट क्लोजर टू द टॉर्च, कार्डबोर्ड पीस को टॉर्च के पास लाएंगे, तो शैडो क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। देख रहे हो पोजीशन, पहले वाला शैडो छोटा था, अब वाला शैडो क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि साइज ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। When the object is away from the source of light, smaller shadow is obtained. When object is very near to the source of light, large shadow is obtained. बात क्लियर हो रहा है? As the source of light is moved closer to the object, large shadow is obtained. तो ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो बातें मैंने की कि यहाँ पर कैसे शैडो जो है कब बड़ा होता है कब छोटा होगा। Formation of shadow depend on how object is brought in the path of light, but whether the shadow is smaller or bigger, this depend on whether the object is near to the source or away from the source. ये बात का ध्यान रखो। अब आ जाओ, आपने सोलर इक्लिप्स का नाम सुना होगा, सुना है? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. all of you Yes, have sir. heard of solar Yes, sir. eclipse and lunar eclipse, दोनों का नाम सुने हैं। और यहाँ पर गौर करेंगे सोलर इक्लिप्स का। पहले सोलर इक्लिप्स में आप ध्यान देंगे, सोलर इक्लिप्स में क्या होता है। When moon comes, इस चीज का ध्यान रखना है। When the moon comes in between the sun and the earth, ना, सन का पोजीशन और अर्थ का पोजीशन, तो इसको भी आप बढ़िया से समझ सकते हो। Yes, sir. गौर से समझोगे तो आ जाएगा। सोलर इक्लिप्स में जब जाओगे, सोलर इक्लिप्स ECLR, सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स में आप क्या करो, गौर करो, सन मून और अर्थ का पोजीशन का ध्यान रखो। सन, ये बड़ा सा सन है, ये सन है, यहाँ से लाइट निकलेगा ना, सन में तो लाइट निकलेगा ना, चारों तरफ अच्छे से जाएगा ना, गौर कर रहे हो, सन से लाइट निकल रहा है चारों तरफ। अब ये लाइट अर्थ मून, अब देखो यहाँ पे मैंने मून को बना दिया, मून, मून कम्स, लेकिन अर्थ इसके बगल में है, क्या है, यहाँ पर है। अर्थ, तो अर्थ दिखाई देने के लिए गौर करना। हाँ, थोड़ा सा तिरछा कर दिए तो कैमरा में आ गया ना, सन आ गया, मून आ गया, अर्थ आ गया। Yes, sir. अब लाइट जो इधर का है, ये देखो, सन का लाइट जब मून के पास जा रहा है, गौर कर रहे हो, सन का लाइट जब मून के पास जा रहा है तो एक डार्क रीजन मिलेगा। जब बहुत सारा लाइट जाएगा ना, दिख रहे हो, तो मून का सरफेस को ऑब्स्टेकल का काम करेगा। मून का सरफेस क्या करेगा, ऑब्स्टेकल का काम करेगा। तो डार्क रीजन कहाँ मिलेगा, ये वाला, ये डार्क रीजन मिलेगा, ठीक है। आखिरकार लौट के मेरा आई रूम में आती है। हाँ,
So when moon comes in between the sun and earth, it casts its shadow on the earth. गौर करो, moon का shadow earth पे पड़ता है, and we cannot see, we cannot see the person on the earth, cannot see the sun. ठीक है प्यारे बच्चों, solar eclipse arises when moon comes in between sun and the earth, so that all three are in a straight line and shadow of the moon falls on the earth, and all the person on that dark part from the earth cannot see the sun, and we call it solar eclipse. So when moon comes in between the sun and earth, it casts its shadow on the earth, and this can block completely or partially on the sun. The phenomenon is called solar eclipse. तो ये ध्यान में रखा जाता है, solar eclipse depend करता है whether the moon is passing directly or partially between the earth and sun. Solar eclipse always occurs on new moon day. ये भी ध्यान देने वाली बात. Moon and earth happens to be straight line with the moon coming in between sun and earth. तो new moon day को solar eclipse होती है. अब आ जाओ, सोलर इक्लिप्स किसी को डाउट है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? नो सर। सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, समझ में आ गया? यस सर। न्यू मून डे के दिन में सूर्य ग्रहण लगती है, और चंद्रमा जो है सन और अर्थ के बीच में आ जाती है. सन की लाइट जब चंद्रमा से टकराती है तो डार्क रीजन अर्थ पे बन जाता है, और पृथ्वी के उतने लोगों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, तब ये सूर्य ग्रहण कहलाता है. ये हमेशा न्यू मून डे के दिन होता है. अब आ जाओ सोलर इक्लिप्स के बाद लूनर इक्लिप्स के बारे में. लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? लूनर इक्लिप्स में चंद्र ग्रहण कहते हैं इसको, और इसमें अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट, कास्ट इट्स शैडो ऑन द मून. गौर करना, बात को ध्यान में रखना, और क्लास की टाइमिंग के अनुसार ही क्लास में रहनी है. आपकी वाचिंग हो रही है कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए ध्यान में रहें आप लोग. डिसिप्लिन की चेकिंग हो रही है आपकी रिकॉर्डिंग क्लास में. अर्थ ब्लॉक द सनलाइट and cast its shadow on the moon. We call this event as a lunar eclipse. Lunar eclipse occur on full moon day when the sun, earth and moon all are in a straight line. In such a situation that earth is between the sun and moon. तो ये बात का ध्यान रखा जाता है, सन की लाइट अर्थ पे पड़ती है, अर्थ का शैडो मून पे पड़ता है, और मून फिर दिखलाई नहीं पड़ता. तो वो लूनर इक्लिप्स कहलाता है. तो ये दो बात का ध्यान रखना है. किनकी आवाज आ रही है? मैंने एक चर्चा किया था, आज का चर्चा में सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स दोनों काफी इंपॉर्टेंट बात रहा. शैडो फॉर्मेशन रहा. उसके बाद एक सोलर इक्लिप्स ध्यान में देने की बात है, वी शुड नॉट लुक द सन डायरेक्टली विद द नेकेड आईज. एक चीज और, नेकेड आईज से सन को नहीं देखी जाती. क्यों? उससे परमानेंट आईज डैमेज हो जाता है. उसके लिए स्पेशल डिवाइस होती है, अरेंजमेंट होती है सोलर इक्लिप्स को देखने के लिए. We should use them and observe all the precautions.
हाँ, अब देखो, सोलर इक्लिप्स कैनॉट बी सीन ऑन एवरी न्यू मून डे। एवरी न्यू मून डे में सोलर इक्लिप्स दिखलाई देता है, ये जरूरी नहीं है। लूनर इक्लिप्स कैनॉट बी सीन ऑन एवरी फुल मून डे। कोई जरूरी नहीं है कि एवरी फुल मून डे में लूनर इक्लिप्स आ जाए, because the orbit of the moon around the earth is not quite in the same plane as its earth's orbit around the sun. तो इसका जवाब आपके पास है, ऑर्बिट जो होती है अर्थ की अराउंड द सन उसी प्लेन में नहीं होती है जिस प्लेन में मून की ऑर्बिट है। तो टू पाथ आर टिल्टेड विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दोनों झुका रहता है पाथ। Sometimes sun and earth and moon lies on a straight line on new moon day or sometime on full moon day. इस तरह से लूनर और सोलर इक्लिप्स ऑकेजनली होता है। प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे हाँ पिन होल कैमरा का भी नाम सुने होंगे, आप लोग सुने हो? पिन होल कैमरा का नाम सुने हो? बोलो। यस हाँ सर। बोल सकते हो। बोलना चाहिए बेटा। यस सर। चैप्टर 9 पीछे से पढ़ो। हाँ बोलने के लिए भी बोले हैं, हाँ ना बोलना होगा ना। पिन होल कैमरा जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को यूज करता है, लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन को बताता है। एक एल्युमिनियम की फॉइल होती है, हाँ उसमें होल किया जाता है बीच में, और लाइट जब उस पे इंसिडेंट होती है ऑब्जेक्ट से तो इन्वर्टेड इमेज बनता है स्क्रीन पे। हाँ, पिन होल कैमरा सिलिंड्रिकल और रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाई जाती है। जब दो सिलिंड्रिकल कार्डबोर्ड ट्यूब्स लोगे स्मॉलर डायमीटर का एक दूसरे से, और उसको ओपन साइड को स्मॉलर ट्यूब में बटर पेपर से डालोगे और एक ओपनिंग को एल्युमिनियम फॉइल से जब कवर करोगे, जब लाइट उस पे जाएगा तो इन्वर्टेड इमेज बन जाता है। तो आज की टाइमिंग 11:40 से कितना था प्यारे बच्चों? 12:20। 12:20 था ना प्यारे बच्चों? यस सर। हाँ, तो हमको लग रहा है टाइम आपका ओवर हो रहा है क्या? मीटिंग एंड किया जाए?